Assalamualaikum dear students, Habib Niasi going to start O-level physics. Today we are going to start O-level physics right from topic 1. So let's have a look on topic 1's headings, physical quantities, units and measurements. ये इसके कंटेंट्स हैं और ये लर्निंग आउटकम्स हैं. लर्निंग आउटकम्स को हम लेक्चर के साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे. Today is the first lecture of topic 1, O-level physics 5054, topic 1, measurement of physical quantities and lecture number 1. Well students, what is physics? Physics क्या है? Define physics. Physics is a branch of physical science in which we study two things or three things. Let's have a look. Physics. Physics is the branch of physical sciences in which we study about two things, matter, energy. And the third one is their mutual relationship. So in physics we study about matter. What is matter? Solid, liquid, gas. Yes, this is not matter, definition of matter, but obviously these are three states of matter. So what is matter? Matter has basically two characteristics. One, matter has mass, and number two, matter occupies space. Everything that has mass and occupies space is called matter. So in physics we study about matter and energy. What is energy? Energy is ability to do work. Energy is ability to do work. In physics, we study about matter, its properties and its relation with energy. In physics, we study about energy, its properties and relation with matter. So, we can define physics. Physics is the branch of physical science in which we study about matter, energy and their mutual relationship. These are basic branches of physics which we study in our O-level. These are included in O-level course. So general physics, thermal physics, waves, electricity and magnetism and atomic physics. So students, let's start with our short question. What is physics? Physics is a branch of physical science that deals with the study of matter, energy and their mutual relationship. फिजिक्स इज़ आर सुपर नेचुरल मदर. हमारी लाइफ में कोई भी ऐसा डिवाइस नहीं है जहां फिजिक्स यूज़ ना हो रही हो. यहाँ देख लें, मैं हूँ, ये मल्टीमीडिया है, ऑब्वियसली फिजिक्स है, मेरे अंदर भी फिजिक्स है, मूवमेंट है, फिजिक्स की ब्रांच है जो इस मोशन को स्टडी करती है. इसी तरह हमारी लाइफ में हर इंस्ट्रूमेंट के अंदर फिजिक्स मौजूद है. फिजिक्स इज आर सुपर नेचुरल मदर. फिजिक्स के अंदर हम फिजिकल क्वांटिटीज को स्टडी करते हैं. मैं आज बहुत खुश हूं. कितना खुश हूं? कैन यू मेजर इट? नो, यू कैन नॉट मेजर इट बिकॉज माई हैप्पीनेस एंड फीलिंग्स आर नॉट फिजिकल क्वांटिटीज. सो फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली, आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज. फॉर एग्जाम्पल, मेरा मैस, लोग कहते हैं जी मेरा वेट 75 kg है. झूठ बोलते हैं लोग. वेट इज नॉट मेजर्ड इन kg. वेट इज अ फोर्स दैट इज मेजर्ड इन न्यूटन. माई मैस इज 75 kg. टोटल मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर इन माई बॉडी इज 75 kg. सो हियर 75 इज न्यूमेरिक वैल्यू and kg is kilogram, is its unit. So every physical quantity has two basic characteristics. One, it has some numeric value and number two, it has unit. Numeric value and unit are collectively called magnitude. तो हम कह सकते हैं कि physical quantity की अपनी magnitude होती है. So a physical quantity possesses at least two characteristics, numeric value, unit.
न्यूमेरिक वैल्यू एंड यूनिट आर कलेक्टिवली कॉल्ड मैग्नीट्यूड। देखें जी, लेंथ, मेरी लेंथ मेजर हो सकती है, जैसा कि लेट्स सपोज द लेंथ ऑफ अ स्टूडेंट इज 104 सेंटीमीटर। हियर 104 इज न्यूमेरिक वैल्यू एंड सेंटीमीटर इज यूनिट। 104 सेंटीमीटर इज मैग्नीट्यूड। लेंथ मेजर हो सकती है, सो लेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी। टाइम मेजर हो सकता है, सो टाइम इज अ फिजिकल क्वांटिटी। जैसा कि मैंने कहा मेरी बॉडी का मैस 75 kg है, सो मैस इज अ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। कौन कौन से ग्रुप्स हैं देखते हैं। पहला ग्रुप है बेस क्वांटिटीज और दूसरा ग्रुप है डिराइव्ड क्वांटिटीज। फिजिक्स के अंदर जितनी भी क्वांटिटीज हैं, फिजिकल साइंस कोई भी हो जाए, उनके अंदर जितनी भी क्वांटिटीज होंगी वो क्वांटिटीज इन 7 क्वांटिटीज से निकली होंगी। ये 7 क्वांटिटीज हैं, इनको ही मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके बाकी की सारी क्वांटिटीज जो हैं वो डिराइव की जाती हैं। सो दीज आर द बेसिक 7 quantities that provide foundation for other physical quantities. So these 7 quantities are called base quantities. देखें, बेस क्वांटिटीज के नेम लिखे हैं, उनके यूनिट्स के नेम लिखे हैं कि बेस क्वांटिटीज कौन से यूनिट्स में मेजर की जाती हैं। देखें, सारे यूनिट्स के सिंबल स्मॉल हैं। एम्पियर कैपिटल है। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है एम्पियर। एम्पियर एक साइंटिस्ट था, उसके नेम पे ये यूनिट आया है। जब हम इसको लिखते हैं फुल फॉर्म में तो ए स्मॉल लिखते हैं। अगर इसको कैपिटल ए कर दिया तो ये यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बजाय नेम ऑफ द साइंटिस्ट बन जाएगा। लिहाजा जब आप क्वांटिटीज के यूनिट लिखेंगे तो स्मॉल और कैपिटल लेटर्स का ख्याल रखना है। जब कोई यूनिट साइंटिस्ट के नेम पे आता है तो उसको एब्रीवेट करते हैं, जब सिंबल लिखते हैं तो वो कैपिटल होता है, जैसे कि एम्पियर। इसी तरह टेम्परेचर का यूनिट है केल्विन, साइंटिस्ट का नेम था, सो इसको कैपिटल के से डिनोट करते हैं। देयर आर 7 क्वांटिटीज दैट प्रोवाइड्स foundation for all other physical quantities. So these 7 quantities are called base quantities. Base quantities के नेम याद करने हैं आपने इनके यूनिट्स के नेम याद करने हैं और आपने उनके सिंबल्स याद करने हैं। देखें, लेंथ इज अ बेस क्वांटिटी, इट्स सिंबल इज स्मॉल एल। कैपिटल एल करेंगे तो वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट हो जाएगी, इसलिए स्मॉल एल है। इसका एसआई यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल एसआई, इसकी बात भी हम नेक्स्ट स्लाइड्स में करेंगे। सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर लेंथ का यूनिट है मीटर, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। मैस बेस क्वांटिटी है, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। हाँ, कुछ हेवनली बॉडीज प्लैनेट्स वगैरह हैं तो उनका मैस के सिंबल कैपिटल एम भी हो सकता है। किलोग्राम इसका बेस यूनिट है और स्मॉल के और स्मॉल जी से किलोग्राम को डिनोट करते हैं। टाइम स्मॉल टी, अगर कैपिटल टी कर देंगे तो वो टेम्परेचर हो जाएगा। टाइम को स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। सेकंड इसका यूनिट है स्मॉल एस से शो करते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रिक करंट आई, एम्पेयर इसका यूनिट है। टेम्परेचर का यूनिट केल्विन है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का यूनिट कैंडेला है, स्मॉल सी और स्मॉल डी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को एन नंबर से डिनोट करते हैं, मोल इसका यूनिट है और MOL से डिनोट करते हैं। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो उसके यूनिट को भी आपने याद करना है और यूनिट के सिंबल को भी। क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द बेस क्वांटिटीज इन द फॉलोइंग। क्या स्पीड इन 7 क्वांटिटीज के अंदर मौजूद है? नहीं है, तो ये बेस क्वांटिटी नहीं है। क्या एरिया इन 7 क्वांटिटीज के अंदर है? नहीं है। फोर्स है? नहीं है। इसका मतलब है कि स्पीड हो या एरिया हो या फोर्स हो, ये है तो फिजिकल क्वांटिटीज, क्योंकि स्पीड भी मेजर होती है, एरिया भी मेजर होता है और फोर्स भी मेजर होती है।
but these are not base quantities, these are derived quantities, and these quantities can be derived from these basic 7 quantities. डिस्टेंस बिल्कुल लेंथ होती है, सो डिस्टेंस इज अ बेस क्वांटिटी. आपने बेस क्वांटिटीज 7 के नेम्स भी याद करने हैं, उनके सिंबल्स भी याद करने हैं और यूनिट्स भी याद करने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द बेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व इन ईच ऑफ फॉलोइंग डिराइव्ड क्वांटिटीज. जैसा कि हमने कहा है कि 7 क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो नई जो क्वांटिटीज बनेगी उनको हम डिराइव्ड क्वांटिटीज कहेंगे. एरिया, क्या एरिया इसमें है? नहीं है, ये बेस क्वांटिटी नहीं है. अगर ये बेस क्वांटिटी नहीं है तो ये डिराइव्ड क्वांटिटी है. अगर ये डिराइव्ड क्वांटिटी है तो ये बेस क्वांटिटी से ही निकली होगी. देखते हैं कि बेस क्वांटिटी से ये कैसे निकलती है. लेंथ को स्मॉल एल से डिनोट करते हैं, मैं सही कर देता हूं जी. एरिया का यूनिट क्या होता है बेट? एरिया का पहले तो फार्मूला देखते हैं. एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इनटू विड्थ. ये हम रेक्टेंगल के एरिया की बात कर लेते हैं. लेंथ एक बेस क्वांटिटी है और विड्थ भी लेंथ होती है, यानी कि ये लेंथ तो लेंथ है, विड्थ भी लेंथ ही होती है. तो ये कौन सी? विड्थ को लेंथ कर लेते हैं. तो एरिया कैसे, हमारे पास एरिया कैसे डिराइव हुआ? बाय मल्टीप्लाइंग बेस क्वांटिटी. कौन कौन सी? लेंथ, 2 दफ़ा लेंथ है. लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर. इस लेंथ का यूनिट भी मीटर, तो एरिया का यूनिट क्या हो जाएगा? स्क्वायर मीटर. तो ये एरिया इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी दैट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम बेस क्वांटिटी लेंथ. Square meter is a derived unit that has been derived from the base unit meter. अब वॉल्यूम को देखते हैं. वॉल्यूम क्या होता है बच्चे? 3 लेंथ होती हैं वॉल्यूम में. लेंथ इंटू विड्थ इंटू ब्रेथ. देखें, लेंथ होती है, विड्थ भी लेंथ होती है और ब्रेथ भी लेंथ होती है. तो बेस क्वांटिटी वॉल्यूम के अंदर कौन सी इन्वॉल्व है? लेंथ. इसका यूनिट क्या होगा? इसका वॉल्यूम का यूनिट होता है क्यूबिक मीटर. सो क्यूबिक मीटर इज अ डिराइव्ड यूनिट. द यूनिट्स विच आर यूज्ड टू एक्सप्रेस बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेस यूनिट्स. 7 बेस यूनिट्स हैं. एंड द यूनिट्स विच आर यूज्ड टू एक्सप्रेस डिराइव्ड क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स. स्क्वायर मीटर इज अ डिराइव्ड यूनिट that has been derived from base unit meter, and meter is the base unit of length. So इस तरीके से हम derived quantities को base quantities से निकालते हैं कि किस तरह 2 base quantities और more than 2 आपस में multiply या divide होके derived quantities बनाती हैं और किस तरह derived units बनते हैं. Derived units are found by multiplying or dividing बेस यूनिट्स. स्पीड देखते हैं. स्पीड का फार्मूला क्या होता है? v से डिनोट कर लेते हैं. स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम. डिस्टेंस इज द लेंथ, इसका यूनिट मीटर है, टाइम का यूनिट सेकंड है. सो स्पीड इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 बेस क्वांटिटीज. वन इज लेंथ एंड अनदर इज टाइम. So the derived unit of speed is meter per second. स्पीड को कैसे डिराइव किया हमने? डिराइव किया बेस क्वांटिटीज को डिवाइड करके. फोर्स का यूनिट क्या होता है? F इज इक्वल टू एम ए. यहां मैस है, यहां पे यूनिट लिख लेते हैं, फिर इजी हो जाना है. मैस का यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर. देखिए बेस क्वांटिटीज कौन कौन सी इन्वॉल्व है? किलोग्राम शो कर रहा है कि मैस इन्वॉल्व है, मीटर शो कर रहा है कि लेंथ इन्वॉल्व है, और टाइम शो कर रहा है, ये सेकंड शो कर रहा है कि टाइम इन्वॉल्व है. फोर्स इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी दैट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम 3 बेस क्वांटिटीज. वन इज मैस, लेंथ एंड टाइम. तो हम कह सकते हैं कि फोर्स के अंदर 3 बेस क्वांटिटीज हैं
वर्क, वर्क के अंदर कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज हैं? वर्क का फार्मूला W=FD, फोर्स और डिस्टेंस। तो इसके अंदर कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं? फोर्स वाली तीनों इन्वॉल्व हैं और ये डिस्टेंस है, लेंथ। लेंथ यहां भी आ चुकी है। इसका यूनिट आपने डिराइव करना है कि वर्क का यूनिट कैसे डिराइव होता है। ये जो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसको हम प्यार से न्यूटन बोलते हैं। सो 1 न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गॉट इट जी। अब हमने क्या सीख लिया? हमने ये नोट कर लें, जल्दी जल्दी, शाबाश, नोट कर लें, इरेज करने लगा। हमने क्या सीख लिया? हमने सीख लिया 7 बेस क्वांटिटीज के नेम्स, उनके यूनिट्स, और सीखा कि डिराइव्ड क्वांटिटीज कैसे डिराइव होती हैं बेस क्वांटिटीज से। डिराइव्ड क्वांटिटीज बात कर चुके हैं हम। डिराइव्ड क्वांटिटीज की डेफिनेशन, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज। हम देख चुके हैं कि किस तरह हम स्पीड को डिनोट करते हैं, किस तरह हम स्पीड को डिराइव करते हैं। एक्सेलरेशन भी डिराइव क्वांटिटी है, वॉल्यूम भी डिराइव क्वांटिटी है। फोर्स की भी बात कर चुका हूं, फोर्स का यूनिट न्यूटन है। ये कैसे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल आया है, लास्ट स्लाइड में इसकी भी बात हो चुकी है। आपने ये सारी चीजें याद करनी हैं। डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं, ये रो है। पी प्रेशर है, ये रो है। ये आपने याद करनी है। ये कैसे डिराइव हुई हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर इनको डिस्कस करते रहेंगे। आपने 7 बेस क्वांटिटीज लर्न रखनी है। Difference, base units and derived units. The units which are used to express base quantities are called base units, and the units which are used to describe derived quantities are called derived units. Base units 7 हैं, derived units बहुत ज़्यादा हैं। derived units base unit से बनते हैं, या base units को मल्टीप्लाई करते हैं या उनको डिवाइड करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स गिवन हैं। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि भाई 7 क्वांटिटीज बेस हैं, उनसे डिराइव्ड क्वांटिटीज निकलती हैं, तो देखना ये है कि ये बेस क्वांटिटीज किसने डिफाइन की थी। देखते हैं जी। पुराने ज़माने की बात है, पुराने ज़माने की बात है कि लोग मेजरमेंट के लिए डिफरेंट थिंग्स यूज़ करते थे, डिफरेंट यूनिट्स यूज़ करते थे। फॉर एग्जाम्पल, लोग जो हैं विलेजेस के अंदर अगर कोई चीज़ एक्सचेंज करनी होती थी, फॉर एग्जाम्पल ग्रेन्स वगैरह, तो पॉट्स यूज़ करते थे। तो उसमें लेने देने में थोड़ा सा इश्यू होता था। डिफरेंट किस्म के यूनिट्स लोगों ने रखे थे, तो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने में प्रॉब्लम थी। 1960 के अंदर ये बात डिसाइड की गई कि ऑल ओवर द वर्ल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट सेम होगा। तो 1960 में जो जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके अंदर जो सिस्टम डेवलप हुआ, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, उसे कहते हैं एसआई, सिस्टम इंटरनेशनल, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, कॉमनली रेफर्ड एज एसआई। उसमें डिसाइड किया गया कि ये 7 बेस क्वांटिटीज हैं, इनकी ये डेफिनेशंस हैं, और इनसे आप डिराइव्ड क्वांटिटीज इस तरीके से निकालनी है। जब पूरे दुनिया में सिस्टम एक जैसा हो गया यूनिट्स का, तो एडवांटेजेस आ गए। कौन सा बड़ा एडवांटेज था कि मेजरमेंट में यूनिफॉर्मिटी आ गई। आज हमारे पास, अगर मैं पाकिस्तान के अंदर अपना मैथ्स करूं, मेरा 75 kg है। अगर मैं अमेरिका चला जाऊं तो भी मेरा मैथ्स 75 kg ही होगा। क्यों? कि जो स्टोन्स हैं मैथ्स मेजर करने वाले या इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनकी मेजरमेंट या मेजरिंग स्केल्स सबकी सेम हैं। जब सिस्टम इंटरनेशनल बन गया तो टेक्निकल जो इंफॉर्मेशन थी वो एक्सचेंज करना आसान हो गई और कैलकुलेशंस इजी हो गई। अब क्वेश्चन ये है कि सिस्टम इंटरनेशनल से कैलकुलेशंस कैसे आसान हो गई, क्योंकि सिस्टम इंटरनेशनल हमें यूनिट्स ऑफ में सिस्टम ऑफ प्रीफिक्सेस देता है। देखते हैं प्रीफिक्सेस क्या होते हैं।
प्री का मतलब है फर्स्ट, पहले, फिक्स का मतलब है लग जाना। वो वर्ड जो सिस्टम इंटरनेशनल के ऐसे यूनिट से पहले लगते हैं उन्हें कहते हैं प्रीफिक्स। फॉर एग्जाम्पल, लेंथ का ऐसे यूनिट क्या है? मीटर। लेकिन आपने देखा होगा कि अक्सर सेंटीमीटर भी यूज हुआ होता है। तो ये वर्ड है, ये लेटर है जो ऐसे यूनिट से पहले लग गया है। वर्ड्स और लेटर्स एडेड बिफोर ऐसे यूनिट्स आर कॉल्ड प्रीफिक्सेस। लेंथ का यूनिट मिलीमीटर भी यूज होता है। मिली, कौन मिली? मीटर। सो मीटर ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ है, मिली वर्ड है जो इससे पहले लग चुका है। द वर्ड्स और लेटर्स एडेड बिफोर ऐसे यूनिट्स आर कॉल्ड प्रीफिक्सेस। अब सवाल यह है कि प्रीफिक्सेस का फायदा क्या है? देख लेते हैं क्या फायदा है। देखें जी, अगर मैं कहूं कि मेरी लेंथ या किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ 174 सेंटीमीटर है, तो मीटर ऐसा यूनिट है, सेंटी प्रीफिक्स है। हर प्रीफिक्स की अपनी वैल्यू होती है। इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻²। तो अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूं तो इसका मतलब है 174 डिवाइडेड बाय 100, तो कितने मीटर बन जाएगा? 1.74 मीटर। 1.74 मीटर। सो ये सब मल्टीपल है। हर एक जो प्रीफिक्स है उसकी अपनी वैल्यू है। देखिए, डेका 10⁻1, हेक्टो 10⁻²। अगर मैं कहूं डेका मीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, तो ये है मल्टीपल्स। और कुछ छोटे भी हैं जिनकी 10 की पावर माइनस में है, ये सब मल्टीपल्स। सो प्रीफिक्सेस आर वर्ड्स और लेटर्स एडेड बिफोर ऐसे यूनिट्स, दीज आर मल्टीपल्स, बड़ा कर देते हैं, और सब मल्टीपल्स या छोटे यूनिट्स होते हैं। आपने ये मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स लर्न करने हैं जो बार बार यूज होते हैं। मैं उनकी आपको प्रैक्टिस करवाता हूं। प्रीफिक्सेस देखें जी, प्रीफिक्सेस के एडवांटेजेस भी देखेंगे। देखते हैं जी, 0.00002 बहुत छोटी क्वांटिटी है। जीरोस को लिखते हुए प्रॉब्लम आ सकती है, जीरोस को पढ़ते हुए प्रॉब्लम आ सकती है। तो सिस्टम ऑफ प्रीफिक्स क्या करता है? वो छोटी क्वांटिटी को प्रॉपर फॉर्मेट में लिख देता है ताकि उसे लर्न करना आसान हो। फॉर एग्जाम्पल, ये है 0 1 2 3 4 जीरो है। कितनी जीरो है? 4। अगर मैं यहां पे ले आऊं, इसको यहां पे डेसिमल पॉइंट को इधर मूव किया है, कहां तक मूव किया है? यहां तक, तो थोड़ी सी जीरोस कम हो जाएंगी। अगर मैं डेसिमल को यहां तक ले जाऊं तो ये कितने डिजिट मैंने जंप किया? 1 2 3 डिजिट मैंने जंप किए पीछे की तरफ। ये देखें, पीछे की तरफ मैंने 3 डिजिट जंप किए, तो डेसिमल यहां पे आया, तो ये क्या बन गया? 0.02। 10⁻⁻ कितनी हो गई? 1 2 3 -3, क्योंकि मैंने 3 डिजिट से उधर जंप किया। अब जीरोस कम हो गए इसके साथ, इनको लिखना पढ़ना आसान है, जैसा कि ये है। अगर मैं यहां जंप ना करवाता, इसको जरा नोट कर ले, मैं रेस करूंगा। अगर मैं 3 डिजिट जंप ना करवाता, मैं कहता कि मैंने ज्यादा डिजिट्स जंप करवाने हैं, ज्यादा डिजिट जंप करवा लेते हैं। लुक, मैं कहता हूं जी मैंने ये भी जंप करवाना है, ये भी जंप करवाना है, ये भी करवाना है, ये भी करवाना है, 2 भी जंप करवाना है, और आगे 0 भी एक लगाना है, 0 भी एक लगाना है, और यहां पे कराना है। तो डेसिमल कितने डिजिट जंप किया? 1 2 3 4 5 और 6। तो ये क्या बनता? 2.20 पॉइंट यहां पे आ गया। आगे 0 ना भी लिखे तो खैर है। अब 10⁻⁻ कितनी होगी? -6। -6 को माइक्रो कहते हैं, माइक्रो। तो आंसर क्या हो जाएगा? 20 माइक्रोग्राम। इस तरह प्रीफिक्सेस बहुत छोटी क्वांटिटीज को थोड़ा प्रॉपर तरीके से कर देते हैं कि लिखना पढ़ना आसान हो।
फिर मैं रिपीट करता हूं। मैंने डेसिमल को यहां से 3 डिजिट इधर जंप करवाया, तो ये क्या बन जाएगी वैल्यू, 0 यहां पे जंप करवाया 0.02, कितने डिजिट जंप करवाया है, 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ ग्राम। ये जो 10⁻³ है ये मिली होता है, मिली। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.02 मिलीग्राम। अगर हम इसको मजीद पॉइंट डेसिमल को ख़त्म करना चाहते हैं और इस तरीके से होल नंबर में लाना चाहते हैं तो क्या करें, इसको और इधर ले जाएं 3 डिजिट आगे ले जाने के लिए 0 हमें और लगानी पड़ेगी, तो ये 20 बन जाएगा और 10⁻⁻6 हो जाएगा। 10⁻⁻6 क्या होता है, माइक्रो को ऐसे यू से और नीचे ऐसे ऐसे कर देते हैं, ये माइक्रो है, माइक्रोग्राम। इसको देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 डिजिट जंप करवा रहा हूं यहां पे, तो आंसर क्या बनेगा 0.0081 जंप कितने किए हैं, 6 - 6। तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 0.0081 10⁻⁻6 माइक्रो होता है, हम पहले कह चुके हैं। 10⁻³ क्या होता है, मिली। 10⁻⁻6 क्या होता है, माइक्रो। तो ये माइक्रोमीटर बन गया। अगर मैं कहूं कि नहीं जी नहीं 3 डिजिट और जंप करने हैं, यहां लेके जाना है, तो ये बन जाएगा 8.1 × 10⁻1 2 3, पहले -6 था, अब -9 हो गया। -9 क्या होता है, नैनो। ये मैंने छोटे प्रीफिक्सेस, छोटे यूनिट्स बताए हैं। एक आज हमने मिली डिस्कस किया, 10⁻³ माइक्रो, 10⁻6 नैनो, 10⁻9। जहां भी 10⁻³ लिखा हो वहां आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं मिली के साथ। जहां भी 10⁻6 लिखा हो वहां आप उसको 10⁻6 को रिप्लेस कर सकते हैं माइक्रो के साथ। जहां कहीं 10⁻9 लिखा हो उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं नैनो के साथ। ये हैं प्रीफिक्सेस। मैंने आज मिली, माइक्रो और नैनो की बात की है। ये बार बार यूज होते हैं, आपने इनकी वैल्यूज याद रखनी हैं। मिली क्या होता है, मिली कौन मिली, 10⁻³ माइक्रो 10⁻6 और नैनो 10⁻9। अब ये है बड़ी क्वांटिटी है, इसको थोड़ा छोटा करके लिखना है तो प्रीफिक्स हमारी हेल्प करेगा। देखें जी 20 है, ये है 3 जीरोस, 3 जीरोस को 10⁻³ भी लिख सकता हूं ग्राम। 10⁻³ किलो होता है, तो ये क्या बन जाएगा, किलोग्राम। गॉट इट। ये देखें जी 20,000 ग्राम है, 1000 को 10⁻³ लिखा जा सकता है, 10⁻³ किलो होता है, ये किलोग्राम बन गया। इस तरह प्रीफिक्स यूज करके हम जीरोस से बच जाते हैं, जीरोस को लिखने से बच जाते हैं, जीरोस को पढ़ने से बच जाते हैं। प्रीफिक्सेस हमारी हेल्प करते हैं कि बहुत छोटी क्वांटिटी हो तो जीरोस की बजाय 10⁻⁴ यूज कर लें और उसकी जगह प्रीफिक्स लगा दें, और अगर बहुत बड़ी क्वांटिटी हो तो भी जीरोस को हटा के 10⁻⁴ यूज कर लें और उसकी जगह प्रीफिक्स लगा दें। अब तक हमने कौन कौन से प्रीफिक्स याद कर लिए जी, बताएं। मिली क्या होता है, 10⁻⁻3। नैनो, नैनो से पहले कौन होता है, माइक्रो, माइक्रो 10⁻6, नैनो 10⁻9 और किलो, किलो बड़ा है 10⁻3। मिली और किलो को देख ले, माइक्रो और मेगा होता है इसका सामने बिल्कुल 10⁻6। नैनो के लिए गीगा, गीगा क्या होगा 10⁻9। ये आपने सेट 6 प्रीफिक्सेस का ये सेट आपने याद रखना है, इस सेट को हम बार बार यूज करेंगे जी। अब हम इसी को आगे लेके चलते हैं। आगे देखें जी, ये क्वेश्चन है, ये आपने खुद सॉल्व करना है।
कि मैं करा दूं? मैं करा देता हूं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग यूजिंग प्रीफिक्स। ये देखें बहुत बड़ी क्वांटिटी है, साथ 3 जीरोज हैं। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 5 × 10⁻³ 3 जीरोज हैं तो ये 1000 है, इसको 10 में यूज करेंगे। देखें जी 10⁻³ क्या होता है? किलो। तो ये क्या बन जाएगा? किलोग्राम। इसको देखें 2 × 10⁻, हाउ मच? 1 2 3 4 5 6 जीरोज हैं। वॉट? 10⁻6 क्या होता है? मेगा, मेगावाट। यहां देखें जी, यहां पे तो यूनिट यूज हो चुका है ऑलरेडी। इसको मैं यूनिट को जरा ब्रेक करता हूं। 52 × 10⁻⁻10 किलो की वैल्यू क्या होती है? 10⁻3। अब किलो खत्म हो गया, ग्राम आ गया, क्योंकि मैंने किलो की वैल्यू लगा दी है। आगे देखते हैं जी 52 10⁻को इकट्ठा कर दें, -10 + 3 ग्राम्स। आगे लेके जाऊंगा, ये बन जाएगा 52 × 10⁻⁻7। -7 वाला तो हमने पढ़ा ही नहीं प्रीफिक्स। कौन कौन से प्रीफिक्स पढ़े? 10⁻³ मिली, 10⁻6 माइक्रो, 10⁻9 नैनो। ये मिली, ये माइक्रो, ये नैनो। अब इसको हम या तो माइक्रो में कन्वर्ट करें या नैनो में कन्वर्ट करें। क्या करें? डेसिमल यहां पे है, जब डेसिमल कहीं नहीं होता तो यहां होता है। इसको इधर लेके आते हैं, ये बनेगा 5.2। 10 की पावर बनी है। अब एक जब हमने आगे आए हैं तो 10⁻1 और 10⁻7 तो हमें पहले से मिला हुआ है। क्या बन जाएगा? 5.2 × 10⁻6 ग्राम। 10⁻6 क्या होता है? माइक्रो, ये माइक्रोग्राम बन जाएगा। अब आप सवाल कर सकते हैं कि सर यहां किलो को क्यों ब्रेक किया? अगर मुझे कोई प्रीफिक्स लगाना है तो 2 प्रीफिक्स इकट्ठे नहीं लग सकते। एक ऐसे यूनिट के साथ एक ही प्रीफिक्स लगना है। इसको भी आप इसी तरह सॉल्व करेंगे। 10⁻6 में कन्वर्ट करना आसान है। डेसिमल को यहां से यहां मूव करें, जब डेसिमल कहीं नहीं होता तो यहां होता है। यह बन जाएगा 2.25 × 10⁻², क्योंकि 2 जंप किए हैं और आगे 10⁻8 पहले से है। यह बन जाएगा 2.25 × 10⁻6। तो -6 क्या होता है? -6 होता है माइक्रो। ये माइक्रो सेकंड बन जाएगा। वेल स्टूडेंट्स, वी विल कैरी ऑन प्रैक्टिस फॉर द टाइम बीइंग। ये नोट करें और अपने नोट्स बनाते जाएं।